Hello everyone and welcome to the Student Physio. We are starting with the skeletal muscle grafts. In skeletal muscle preparation, we have already seen the muscle that is dissected is the gastrocnemius and the nerve is the sciatic nerve. The muscle and nerve preparation is then further connected to a recording drum which records the muscle twitch. We have also already seen how a simple muscle curve looks like, which has the components of latent period, contraction period, and relaxation period. So, now to quickly brush up on those, what is a latent period? Latent period is a time duration taken for the nerve to react. That is, from the point of stimulus to the point of contraction, this period is known as the latent period. The period from the beginning of contraction to the maximum point of contraction is known as the contraction period, and from the peak of contraction to the final relaxation is known as the relaxation period. So, if you have not watched the first video, please do give it a watch to understand this better. The graphs that to be need to be studied today are effect of various strength of stimulus, effect of load on simple muscle curve on the moving and stationary drum, genesis of tetanus, phenomenon of fatigue, effect of temperature on the skeletal muscle curve, and the conduction velocity of the nerve. So let us now start with the very first graph, that is to study the effect of various strength of stimuli on skeletal muscle. Now as you all can notice that this graph is not the curve that we are expecting like a simple muscle curve, but these are just mere lines made. This is because in this experiment it is recorded on a stationary drum and not a moving drum. Therefore, whenever muscle contracts, the liver is pulled and a stroke is made on the drum. Okay, so the first thing that is to be noticed is what is these numbers on the scale, the 30, 29.5 and all. We have also seen this for cardiac muscle graph. So if you remember, this is the distance between the primary and secondary coil. The distance between the primary coil and secondary coil is kept on decreasing so that the strength of stimulus can be increased. Therefore 30 indicates the stimulus at which no response is produced. This can be then referred to as subthreshold stimulus. So now what are the types of stimulus? Threshold stimulus is anything which is minimum, the minimum amount of strength the muscle requires to elicit a response is known as the threshold stimulus. Anything above or anything below that is known as the subthreshold stimulus, which is not able to generate any response. Now after the threshold, the other stimulus are supramaximal, maximal, and submaximal. So the maximal stimulus, by the name you can get it that maximal contraction can be achieved at this stimulus, therefore that is known as the maximal stimulus. Now anything beyond that maximal stimulus is called as a supramaximal stimulus. Does the response change? No. At maximal stimulus, maximum contraction is obtained, and the same contraction is obtained at supramaximal also. The change is the strength of stimulus that is applied. The strength of stimulus, if that is more than the maximal stimulus, it is called as a supramaximal, even though the change remains the same, the force of contraction remains the same. Then submaximal stimulus is a stimulus where it is able to contract, it is able to generate some amount of muscle contraction but not to the maximum level. That is called as the submaximal stimulus. So now to understand what are these points A, B and C, let us now first understand what are the make and break stimulus. If you have seen the previous video, you know a tap key is introduced in the circuit, and when the key is pressed it makes the make stimulus, and when it is released it makes the break stimulus, that is it is breaking the circuit. Therefore the two tiny little dots that you can see indicates the make and break stimulus. These tiny little dots helps us understand that which stimulus the muscle is responding. Okay, so at 29.5 I can see on the second dot my muscle has started responding. Therefore I can call this point A to be my threshold break stimulus. Okay, this is the threshold break stimulus. Then at point 26.5 I am able to see a tiny little contraction is made by the
make stimulus. Therefore, this can be regarded as my threshold make stimulus. The point B is regarding the maximal break stimulus. Look at this. After this point of contraction, there is no increase in the height or force of contraction at supramaximal stimulus. Therefore, point B can be referred to as maximal break stimulus. And at point C, if you can see, this is the first line and not the second. Therefore, I can record this as the maximal make stimulus. And immediately after the point C, there is another graph of the break stimulus, which is at the supramaximal level. Though there is no change in the force of contraction, the strength of the stimulus is increased. Therefore, it can be referred to as supramaximal break stimulus. You've got all this A, B, and C. So now the next important question that is asked is what is this graph doing? What is this graph been made for? It proves the property of all or none law. What is the all or none law? When the stimulus is adequate, the tissue responds to its maximum, that is all phenomenon, and when the stimulus is inadequate, the tissue does not respond at all, which is the none phenomenon. यानी स्केलेटल मसल भी एक ही प्रॉपर्टी फॉलो करता है, आर या पार करेगा तो पूरा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. दैट इज इट नीड्स अ मिनिमम स्टिमुलस और मिनिमम energy to actually elicit a response. That is it, all and none phenomena. The difference is in skeletal muscle it is followed by a motor unit. What we have seen in the cardiac graph, that the whole heart, that is the syncytium, follows the all or none law. Therefore, the whole heart, if it is going to contract, it will contract together, and if it is not going to contract, it will not contract at all. But in skeletal muscle, we are seeing that only a motor unit follows this law. What is a motor unit? A motor unit is one alpha motor neuron along with all the muscle fiber it innervates. Therefore, what it is, only one alpha motor neuron and not the whole skeletal muscle. That makes the difference. So let us now start with the second graph, that is the effect of load on the skeletal muscle curve. We have already seen how a skeletal muscle curve looks like. We have to see its effect. The effect of load is what? The weight that is acting on the muscle. Weight is suspended at the muscle, like 20 grams, 10 grams weight is suspended, and then the muscle is being made to contract. It's recorded on two, there is a moving drum and a stationary drum. So before understanding any of this, let us first understand how is this experiment done. The skeletal muscle preparation is prepared, that is the gastrocnemius muscle, which is attached to the sciatic nerve, that is dissected, and the whole process is the same. The muscle and nerve are prepared. Then what is different is the thread which is attached to a tendon is first attached to a liver. That liver has an adjusting or arresting screw. What the work of the screw is, when the screw is tightened, the weight that is hanging on that liver, लिवर के ऊपर ही जो है हमने वेट लगा दिया है 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, जितने का भी हमको रिकॉर्ड करना है उतने ग्राम का हमने वेट लगाया है. अब इमेजिन करो कि ये मेरा लिवर है, उसके ऊपर मैंने वेट लगाया. अगर ये वेट लगाया है तो ग्रेविटी एक्ट करेगी, ग्रेविटी विल एक्ट एंड पुल द लिवर डाउन, राइट? This is gravity and the weight together will pull the liver down. This has to be done. But what happens is, because the weight is applied इस तरह से, there is an arresting screw also. कि अगर मैंने screw को tight कर दिया, इतना tight कर दिया that the liver is maintained in the air. The liver does not fall down. ठीक है, यही होता है कि अरेस्टिंग स्क्रू को एकदम टाइट कर दो और फिर उसको हम लोग अगर रिकॉर्ड करेंगे तो जो लिवर है वो बराबर सिर्फ क्या करेगा, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब मसल में चेंज आएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वो लिवर को हिलाएगा, सिर्फ तभी जो है वेट अपना एक्ट करेगा, तभी वेट लिवर को नीचे खींचेगा और एक्ट करेगा. देन दैट इज कॉल्ड एज द आफ्टर लोडिंग. ठीक है, देन here we create two concepts, after loading and free loading. By after loading what we mean is the load is acting on the muscle during the contraction period only. जैसे हमने अभी देखा कि अरेस्टिंग स्क्रू को टाइट कर दिया, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और फिर वो लिवर खींचने लगेगी, सिर्फ तब जो वेट हम लोगों ने लिवर पे लगाया हुआ है तब वो एक्ट करेगा और फिर वो और भी ज़्यादा नीचे खींचेगा लिवर को.
that is known as after loading. But what if the screw is not tight? तब क्या होगा? Then it is free loading. Now imagine the screw is not tight. The screw is not tight. तो हमारा क्या होगा, ये वेट जो है 10 ग्राम का वो एक्ट करेगा हमारे पूरे लिवर को, वो नीचे खींचेगा. अब लिवर को नीचे खींचेगा तो क्या होगा, ये जो हम लोगों ने उसका पेन बनाया है टू दैट इज रिकॉर्डिंग द मसल का कर्व, वो भी नीचे आएगा. लिवर ऑल्सो शिफ्ट्स डाउन, जिसके वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करे या ना करे, इवन इन द रेस्टिंग फेज द लोड एक्ट्स. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्री लोडिंग एंड आफ्टर लोडिंग. फ्री, इसको हम याद रख सकते हैं प्री से, प्री synonyms, therefore you can remember it by preloading. इसका मतलब कि मसल को पहले से लोड कर दिया है, इवन इन द रेस्टिंग फेज द लोड इज एक्टिंग, दैट इज फ्री लोडिंग. एंड when the muscle is acted by the weight only during the contraction phase, then it is known as after loading. Okay, this is being cleared. Therefore अभी हमारे दो ग्राफ बनेंगे क्लियर. एक तो जब हम लोगों ने अरेस्टिंग स्क्रू को टाइट कर दिया और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन फेज के टाइम पे वो वेट एक्ट कर रहा है, दैट इज द आफ्टर लोडिंग. एंड व्हेन जो स्क्रू को लूज रखा है एंड द लोड इज being applied even during the resting phase, therefore the liver also keeps on shifting. ठीक है, अभी अगर लोड एक्ट कर रहा है तो जितना ज़्यादा लोड लगाएंगे उतना ज़्यादा लिवर भी नीचे नीचे गिरेगा. मैं 10 ग्राम का लगाऊंगी तो थोड़ा हिलेगा, 20 ग्राम का लगाऊंगी उससे ज़्यादा गिरेगा, 30 का लगाऊंगी उससे ज़्यादा गिरेगा. therefore this डिफरेंस इज सीन ऑन द ग्राफ एज वेल. जितनी बार मैं जितना ज़्यादा वेट लगाऊंगी उतना ज़्यादा नीचे मेरा ग्राफ फॉर्म होता जाएगा, विच विल लीड टू शिफ्टिंग ऑफ बेस लाइन. दिस इज अ वेरी मेजर डिफरेंस दैट यू नीड टू रिमेंबर. जितनी बार आपको शिफ्ट इन द बेस लाइन दिखे, आपको समझना है दैट ग्राफ इज मेंट टू बी ऑफ फ्री लोडिंग एंड नॉट आफ्टर लोडिंग. आफ्टर लोडिंग में बेस लाइन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फ्री लोडिंग में द बेस लाइन शिफ्ट्स बिकॉज the arresting screw is loose and the liver is allowed to be acted upon by the weight even during the resting period. Okay, so let us now start with stationary and moving drum. अभी हम लोगों ने एक ही ग्राफ को दो तरीके से रिकॉर्ड किया है, एक स्टेशनरी ड्रम पे, एक मूविंग ड्रम पे. अभी इन दोनों का कैसे डिफरेंस समझेंगे. जैसे हमने पहले ग्राफ देखा कि अगर स्टेशनरी होता है ड्रम तो क्या होता है, ओनली द सिंगल लाइन्स आर फॉर्म. स्टेशनरी ड्रम है तो बस ऐसे ऐसे सिंगल लाइन्स बनेंगे, लेकिन अगर मूविंग ड्रम है तो पूरा का पूरा कर्व बनेगा. जैसे हम लोग सिंपल मसल कर्व में देख रहे थे वैसे पूरा का पूरा कर्व बनेगा. देन दैट इज कॉल्ड एज द मूविंग ड्रम वाले ग्राफ. समझ गए. अभी मूविंग ड्रम में भी हमको दो ग्राफ दिखेंगे हमेशा, एक फ्री लोडिंग वाला, एक आफ्टर लोडिंग वाला. इसको कैसे पहचाना है, दैट ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि अगर शिफ्ट दिख रहा है बेस लाइन में, बार बार ऊपर नीचे हो रही है बेस लाइन, देन वी हैव टू गेस दैट दिस इज द ग्राफ फॉर फ्री लोडिंग. एंड इफ द बेस लाइन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इट हैज़ टू बी ऑफ आफ्टर लोडिंग. ओके, अभी मेन ये डिफरेंस क्या है, फ्री लोडिंग से क्या होगा और आफ्टर लोडिंग से क्या होगा. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसिडर आफ्टर लोडिंग फर्स्ट, विच इज़ लाइक प्रिटी सिंपल कि हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन पीरियड के टाइम पे लोड को एक्ट होने दिया है. तो क्या होगा, 10 ग्राम का वेट लगाया, ये हमारा ग्राफ बना. क्या डिफरेंस दिखा कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तो है और बराबर एक पूरा कर्व बना. लेकिन जब 20 ग्राम का वेट दिखा, जनरली हम लोग जैसे समझते भी कि ज़्यादा वेट देंगे तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए मसल का. ये सिंपल वही दिख रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 जितने ग्राम जितना ज़्यादा वेट लगा है उतना कम हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दिखने लगा. दिस इज लाइक प्रिटी सिंपल. एज द वेट इंक्रीजेस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस. इन आफ्टर लोडिंग इंक्रीज इन द वेट, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे लेटेंट पीरियड भी बढ़ेगा. देखो लेटेंट पीरियड हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, द पॉइंट ऑफ स्टिमुलस टू द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. अगर पहले का देखें तो पहला पहले स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद थोड़े देर बाद दूसरा कर रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा. तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका लेटेंट पीरियड भी बढ़ रहा है. उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगानी पड़ रही है टू बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट. प्रिटी सिंपल विथ आफ्टर लोडिंग, सीधा सीधा फंडा. वेट बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, लेटेंट पीरियड भी बढ़ रहा है. सिंपल ऑन द मूविंग ड्रम. लेकिन ये फ्री लोडिंग में जो क्या है थोड़ा डिफरेंस है. नाउ व्हाई इज दैट सो. फ्री लोडिंग में जो मेन प्रिंसिपल दैट एक्ट्स इज ऑफ फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ.
जैसे हमने हार्ट में भी देखा था. व्हाट इज द फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ? विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर. यानी मसल फाइबर की पहले जितनी लेंथ है, अगर मेरी मसल फाइबर की लेंथ इतनी है तो मेरा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा. अगर मेरे मसल की फाइबर की लेंथ कम है तो मेरा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा. अभी हाउ इज दिस एप्लीकेबल इनटू द फ्री लोडिंग वाला केस? व्हाट हैपन्स इज, जब हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर किया और 10 ग्राम का वेट को हम लोगों ने एक्ट करने दिया नीचे की तरफ. अभी क्योंकि ये 10 ग्राम का वेट नीचे खींच रहा है ये पूरे लिवर को, और जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका जो लिवर है वो भी नीचे खींचा जा रहा है. तो व्हाट हैपन्स इज द मसल जो जिस प्लेट पे रखी हुई है वहाँ से भी वो खींची जा रही है. देयरफॉर द मसल इज ऑल्सो गेटिंग लेंथन्ड. मसल इज ऑल्सो गेटिंग लेंथन्ड. अब इसके वजह से फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ इज अप्लाइड हियर कि मसल लेंथन है तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा. बट अ मेजर थिंग टू नोटिस इन दिस लॉ इज विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स. एक लिमिट तक अगर लेंथनिंग होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा या द फोर्स रिक्वायर्ड विल बी मोर. उस लिमिट के बाहर चेंज आएगा. दैट हैज़ टू बी नोटेड इन दिस ग्राफ. So if we look at the free loading wala graph on the moving drum, what we can see is as the weight increases, the force of contraction increases initially, only initially, but later the force of contraction starts to decrease. क्योंकि नेचुरली अगर लोड आ रहा है मसल पे तो उसका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम ही होना चाहिए क्योंकि मसल पे बहुत ज़्यादा वेट है. बट वो स्टार्टिंग में इनिशियली बढ़ क्यों रहा है? बिकॉज हम लोगों ने वो अरेस्टिंग स्क्रू लूज किया हुआ है जिसकी वजह से मसल लेंथन हो रही है और उसको वो और ज़्यादा फोर्स मिल रही है. इसकी वजह से फॉर इनिशियल 1 to 2 contractions you can see that there is increase in the force of contraction. If you compare the 20 gram, that this is the force of contraction, that is the amplitude of contraction, and this is for the 10. The 10 and 20 में जो डिफरेंस है दैट इज मोर, दैट इज 20. दो द बेस लाइन शिफ्ट हो रहा है. आप ये मत देखो कि 10 वाला तो ऊपर है तो उसका ये हाइट ज़्यादा है, 20 वाला तो नीचे है उसकी हाइट कम है. डोंट लुक एट दैट, लुक एट द डिफरेंस फ्रॉम द बेस लाइन. क्योंकि बेस लाइन इसकी ऊपर है तो इसके वजह से आपको लग रहा है कि ये बहुत ऊपर है, लेकिन the baseline for 20 is below and still the force of contraction of 20 is काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, like almost equal to the 10. Therefore you can say that 10 और 20 में there can be application of Frank Starling's law जिसके वजह से the force of contraction is seem to be increased. लेकिन उधर ही अगर आप 40 का देखो तो baseline भले ही नीचे है but the force of contraction is way too less with 40. बस इतना सा ही ग्राफ का कर्व obtain हो रहा है. That is when the limit is being crossed and the force of contraction is decreased. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द लेटेंट पीरियड? लेटेंट पीरियड का भी सेम है, जैसे जैसे जिसका जैसे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का है, पहले वो इंक्रीज होता है लेकिन बाद में लेटेंट पीरियड को भी डिक्रीज होना पड़ता है. That is seen on the moving drum. And then we have freeloading on the stationary drum. अब स्टेशनरी ड्रम पे अगर आप देखो तो लाइंस तो दिख रही है. आफ्टर लोडिंग इज प्रिटी सिंपल. 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम हर बार डिफरेंस में क्या दिख रहा है? देर इज अ लीनियर डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस. बट इन फ्री लोडिंग व्हाट यू कैन सी देर इज बेसलाइन का शिफ्ट. दोनों में एक ही पॉइंट है हम लोगों को दोनों का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कि अगर बेसलाइन शिफ्ट हो रही है मतलब ये फ्री लोडिंग है, अगर बेसलाइन कांस्टेंट है मतलब ये आफ्टर लोडिंग है. तो जैसे मैंने 10 ग्राम का ये देखा, ये मेरा कर्व है फॉर 10 ग्राम्स. फिर दिस इज माई कर्व फॉर 20 ग्राम्स. अगर आप इसको मेजर के हिसाब से देखो, लाइक मैथमेटिकल मेजर के हिसाब से देखो तो 20 का इज वे मोर. ठीक है, तो 10 से 20 का 20 और आप कंपेयर करो तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मोर. फिर 30 का भी आप कंपेयर करो, 30 और 20 में भी द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज मोर. देयरफॉर यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ फेजेस में यू कैन से द फ्रैंक स्टार्लिंग्स लॉ इज अप्लाइड एंड बिकॉज ऑफ द लेंथनिंग ऑफ द मसल द force of contraction is more in
फ्री लो इन द स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड, बट लेटर व्हाट हैपेंस, अगर आप बाद में ये 600 ग्राम 700 ग्राम और इसके ग्राफ देखो तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स टू ग्रेजुअली डिक्लाइन. Therefore, इसमें भी सेम चीज है. The force of contraction increases initially, but later the force of contraction is decreased. ठीक है. Now the question that can be asked is what is optimum load? So what I've written in this green box is how you should present your answer when it is asked to identify the graph. In all skeletal muscle and cardiac muscle graph, what is the first question that is asked is identify the graph. It has 1 mark. So instead of writing is in one simple line phenomenon of fatigue, what you can do is try and write this sentence to demonstrate the phenomenon of fatigue, or whatever the graph is for that matter, to demonstrate the XYZ filling the blanks in frog skeletal muscle, gastrocnemius and sciatic nerve. Because you are writing this frog skeletal muscle, gastrocnemius and sciatic nerve, the examiner gets to know that you know in skeletal muscle this is the skeletal muscle वाला ग्राफ, और इसमें आपको पता है कि प्रिपरेशन क्या होती है, कौन सी मसल और कौन सी नर्व यूज करती है. यू आर गिविंग दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ओके, सो do remember and write this identification wala point in this manner only. Now let us come back to what is fatigue. Fatigue is a temporary phenomenon. It is defined as reduced performance resulting from prolonged and continuous activity. The site of occurrence of fatigue is at the neuromuscular junction. ठीक है, फटीग कहाँ हो रहा है, मसल में हो रहा है, नर्व में हो रहा है, नहीं, इट इज हैपनिंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि ये सिर्फ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हो रहा है, मेरी मसल कभी फटीग नहीं हो रही, मेरे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फटीग हो रहा है. कैसे? दिस इज प्रूव्ड बाय स्टिमुलेटिंग बोथ द मसल एंड नर्व आफ्टर फिनोमिनन ऑफ फटीग एंड गेटिंग नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस. यानी वॉट दिस मीन्स इज, एक बार मेरी मसल फटीग हो गई, मैंने बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, बार ग्राफ्स भी ऑब्टेन कर लिए है, और अब मेरे को पता चल रहा है कि उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो चुका है, इसका मतलब मसल फटीग हो चुकी है, मसल थक चुकी है. इसके बाद मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रोड से स्पेसिफिकली सिर्फ मसल को स्टिमुलेट करके देखा कि अरे मसल थकी है कि नहीं थकी. अगर मसल में भी कम ग्राफ आएगा मतलब मसल भी थक चुकी है, मसल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है. लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रोड सिर्फ मसल में लगाया तो क्या हुआ, सिर्फ मसल में लगाया इलेक्ट्रोड तो पूरा अच्छे से ग्राफ आ रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बराबर हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा करी, रिलैक्स भी पूरा करी है, तो इसका मतलब मसल तो नहीं थकी है, मसल इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. तो अब मैंने क्या किया, नर्व में लगा के देखा कि अगर चलो मेरी मसल नहीं थकी तो मेरी नर्व थकी, कि मेरे नर्व को स्टिमुलेट तो करना है, अगर नर्व स्टिमुलेट होगी फिर वो मसल को इम्पल्स पहुंचाएगी और फिर तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, चलो मेरी नर्व थक गई होगी. तो हमने क्या किया, सिर्फ नर्व को कॉन्ट्रैक्ट करके देखा कि नर्व को इम्पल्स भेजे और नर्व को बोला कि आप हमको एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके दिखाओ, तब भी हमारा जो ग्राफ बना इट वॉज नॉर्मल, like the normal skeletal simple muscle twitch. Therefore this proves कि जो भी थकना हो रहा है वो किधर हो रहा है, एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी जो नर्व और मसल के बीच का जंक्शन है वहाँ पे सारा खेल हो रहा है फटीग का. And why is that so? Because of the exhaustion of acetylcholine. Acetylcholine is a receptor that is responsible for transmission of impulses from the nerve to the muscle. अब इसका हम आगे और ज़्यादा अच्छे से देखेंगे. बट देर इज ऑल्सो वन मोर थिंग रिटन दैट फटीग इज अ टेम्परेरी फिनोमिनन. टेम्परेरी क्यों बोल रहे हैं हम इसको, फटीग परमानेंट नहीं है, हम कभी परमानेंटली नहीं थकते, बस थोड़ी देर के लिए थकते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेंगे वापस ठीक हो जाएंगे. देयरफॉर इट इज़ प्रूव्ड ऐसे ही कि आफ्टर रेस्ट अगर हम थोड़ी देर मसल को रेस्ट देंगे तो फंक्शन रिटेन्स, वापस आ जाता है फंक्शन, मसल इज एबल टू फंक्शन नॉर्मली अगेन. Work done is basically force into displacement, that is the displacement that is caused due to the force in the direction of force, that is the work done. तो अभी वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, फ्री लोडिंग में. why is that so? Load when the load is acted it stretches the muscle, that we have seen ki because the load is acting in the downward direction it stretches and pulls the muscle towards itself. Therefore the muscle is being stretched according to the Frank-Starling's law. Then the muscle generates more tension. Due to the stretching the muscle can generate more tension, which will lead to increase in the force of contraction, though within limits, but it increases the force of contraction and therefore the work
done is more in free loading. Because clearly अगर आप ये एक सिंपल चीज़ याद रखो कि आफ्टर लोडिंग में तो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली बस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम 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 ही होते जा रहा है, कि बस मेरा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 10 ग्राम लगो 20 ग्राम लगो तो धीरे 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 और ज़्यादा कम कम ही होते जा रहे हैं. कि इन फ्री लोडिंग में एटलीस्ट कुछ स्टार्टिंग के कुछ इम्पल्सेस ही सही, थोड़ा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, भले ही बाद में कम हो रहा है जैसे आफ्टर लोडिंग में होता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही सही थोड़ा तो बढ़ रहा है. देयरफॉर इन फ्री लोडिंग the work done is more. Okay, so and then the last thing that we have to see is the real life example for free loading and after loading is when एक बकेट को, भरी हुई बकेट को अब पूरा उठा के चल रहा, भरी हुई बकेट को उठा के चलना, दैट इज द फ्री लोडिंग. लेकिन आफ्टर लोडिंग क्या है, एक भरी हुई बकेट को ज़मीन से उठाना, ज़मीन पे पड़ी हुई है उसको हम ज़मीन से उठा रहे, दैट इज़ आफ्टर लोडिंग. क्योंकि इसमें द फोर्स इज नॉट एक्टेड ड्यूरिंग द रेस्टिंग पीरियड, या पूरे टाइम फोर्स नहीं एक्ट करा है, जब हम उसको उठाने लग रहे हैं, व्हेन द मसल हैज स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली देन द फोर्स इज एक्टिंग. देयरफॉर भरी हुई बकेट को ज़मीन से उठाना, दैट इज लिफ्टिंग बकेट फ्रॉम द ग्राउंड इज आफ्टर लोडिंग, एंड कैरिंग the bucket or the water filled bucket at a distance is called free loading. Done. Now let us begin with the third graph, that is genesis of tetanus. For that, first, what is tetanus? As we have seen in cardiac muscle, it is defined as a sustained state of contraction. मसल का पूरी तरह से बस कॉन्ट्रैक्टेड रहना और बिल्कुल रिलैक्स ना कर पाना जब तक आप स्टिमुलस नहीं लगा रहे हो, that stimulus नहीं हटा रहे हो, that is called as tetanus. Sustained state of contraction resulting from multiple successive stimuli. In our previous video, the difference between the skeletal and cardiac muscle, कि skeletal muscle का refractory period is very short and cardiac muscle का is very long, therefore it is referred to as the long refractory period, while skeletal muscle is referred to as short or only the refractory period. That is उसका रीज़न भी हम लोग देख चुके हैं, दैट द रीज़न इज due to the action potential का difference. The action potential of skeletal muscle is short and therefore the refractory period of skeletal muscle is also short, which is approximately 10 millisecond. If you have not seen that previous video, please do give it a watch. So now let us now dig deeper into skeletal versus cardiac muscle. The refractory period of skeletal muscle is short and not present during the contraction phase or the contraction period. Therefore, it responds to the next stimulus falling in the contraction period, which will then lead to the sustained state of contraction known as tetanus. क्योंकि उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड ही इतना छोटा है कि वो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में आता ही नहीं है, तो वो रेजिस्ट कैसे करेगा. अगर उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड यानी उसका रेजिस्टेंस वाला पीरियड बड़ा होता, जो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में भी काम करता, तो वो रेजिस्ट कर पाता अपने अगले स्टिमुलस को और फिर उसके ऊपर एक्ट ना करता. लेकिन उसका पीरियड इतना छोटा है कि जितने स्टिमुलस आ रहे हैं उतने पे उसको काम करना ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टिटनाइज हो रहा है. एंड इन कार्डियक मसल उसका क्या डिफरेंस है, इट कैन नॉट बी टिटनाइज्ड कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड स्टेज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज एज वेल एंड अ पार्ट ऑफ रिलैक्सेशन फेज एज वेल. देयरफॉर द कार्डियक मसल कैन नॉट बी टिटनाइज्ड कंप्लीटली. उसमें हम लोगों ने देखा था ओनली इनकम्प्लीट टिटैनस. ठीक है. Now let us see the factors affecting tetanus. This can be a question that can be asked. The first is type of muscle fiber, कि कौन सी टाइप की मसल फाइबर है, उसके हिसाब से टिटनाइज जल्दी होगा या कम होगा. क्योंकि अभी हमने देखा कि कार्डियक मसल को नहीं कर सकते कंप्लीटली टिटनाइज, लेकिन स्केलेटल मसल को कर सकते हैं. Therefore tetanus का प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मसल फाइबर. टेम्परेचर क्या है उसका, अगर टेम्परेचर हम लोगों का ज़्यादा होगा तो जैसे हम लोगों के मसल कॉन्ट्रैक्शन पे फ़र्क पड़ता है, वैसे ही हमारे टिटैनस की प्रॉपर्टी पे भी फ़र्क पड़ेगा. रिफ्रैक्टरी पीरियड फटीग, कि रिफ्रैक्टरी पीरियड कितना है मसल का, उसके हिसाब से इट विल डिटरमाइन कि टिटनाइजेशन कितना होगा या नहीं होगा. दैट इज़ रिफ्रैक्टरी पीरियड. फिर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, कि कितना स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस हम दे रहे हैं और कितनी बार दे रहे हैं, कितनी
टाइम तक दे रहे हैं, दैट विल ऑल्सो डिटरमाइन कि मसल अगर टिटेनाइज हो सकती है नहीं हो सकती है. देन द लोड, कि हम लोग कितना लोड दे रहे हैं, कितना टाइम तक दे रहे हैं, एंड तब जाके हमारी मसल टिटेनाइज होगी या नहीं होगी. Therefore these are the 5 factors determining. फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ टिटेनस. नाउ कॉजेस ऑफ टिटेनस में बहुत लोग ये समझते हैं कि हमें लिखना है कि हम स्टिमुलस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसिव स्टिमुलस दे रहे हैं, इसलिए मसल इज गेटिंग टिटेनाइज्ड. बट नो, दिस इज नॉट व्हाट इट इज बीइंग आस्क्ड. इट इज आस्किंग अबाउट द फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कॉजेस ऑफ टिटेनस. अभी पैथोलॉजिकल में भी आपने सुना होगा कि टिटेनस का इंजेक्शन ले लो, टिटेनस के शॉट ले लो. क्यों? Because Clostridium tetani is a microorganism or bacteria that causes the phenomenon of tetanus due to the neurotoxin that it emits. Let us now see the graph. यहाँ पे चार हम लोगों को बेसिकली अलग अलग ग्राफ दिख रहे हैं, जिसमें डिफरेंस क्या है अगर आप नीचे की तरफ नोटिस करेंगे, देन दिस इज द स्टिमुलेशंस, कि कितने ज़्यादा स्टिमुलेशंस हम लोग अप्लाई करें. अगर यहाँ पे थोड़े कम है, उससे ज़्यादा स्टिमुलेशंस इधर है, और उससे भी ज़्यादा आगे आके जाके हम लोग स्टिमुलेशंस दे रहे हैं. जितने ज़्यादा स्टिमुलेशंस दे रहे हैं, मसल उतनी कम रिस्पॉन्ड कर रही है, एंड देर इज़ flattening, more flattening of the graph that is seen with more number of contractions or more number of stimulation. In the first graph that we can see, there is beneficial effect. Beneficial effect is what? Increase in the force of contraction by the successive stimuli due to favorable condition produced by the previous contraction. क्योंकि previous एक बार contract हो चुका है muscle, तो दूसरे contraction को उसकी help मिलना और फिर तीसरे को भी उस second वाले की help मिलना, that is called as the beneficial effect. Now why is this occurring? Why is this effect occurring? The causes are increase in the temperature. क्योंकि पहले एक बार contraction हो चुका है, तो muscle का जो temperature है that will be increased. Then that will lead to decrease in the viscosity of the sarcoplasm. कि टेम्परेचर बढ़ा है तो उसकी विस्कोसिटी भी जो है वो कम होगी. विस्कोसिटी यानी क्या, मैंने पहले समझाया था. विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन. उसका जो ये सार्कोप्लाज्म जो है वो थोड़ा पतला होने लगेगा. फिर देयर इज इंक्रीज इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. व्हाट विल द एंजाइमेटिक एक्टिविटी डू? जो भी रिएक्शंस होने हैं मसल में टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल, दैट विल बी अकरिंग फास्ट. जो एंजाइम्स को काम करना है वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी काम करेंगे ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. देयरफॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस एंड देयर अक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द सार्कोप्लाज्मा. तो यानी हर कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको नए नहीं लाने पड़ रहे हैं, जो पुराने में से बच गए थे वो भी यूज अप हो रहे हैं, जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन द एफिशिएंसी. You can understand this by a simple example कि अगर मैं एक बार कोई चीज़ कर चुकी हूँ तो मेरे पास उस चीज़ का पहले से एक्सपीरियंस है. दूसरी बार अगर मैं सेम चीज़ करूँगी तो वो एक्सपीरियंस मेरे काम आएगा. It will be easier for me to do it the second time. That is simply the beneficial effect. Therefore with 5 to 10 stimulation per second, यानी जो first और second हम लोग देख रहे थे, the force of contraction increases gradually. There is the length increases than the previous contraction. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ये देखा, this is the first contraction and relaxation made. उसके बाद जो दूसरा है उसकी height और ज़्यादा बढ़ रही है. The force of contraction is determined by what? The height of contraction, or also can be demonstrated as the staircase phenomenon, because this is what the stairs are formed 1 2 3 ऐसे level पे क्या बन रहा है? Stairs बन रहा है. Therefore this can also be regarded as the staircase phenomenon. The next is the trepe that we are going to see. Trepe is what? It is also because of the beneficial effect कि eventually क्या, force of contraction increase होता हुआ दिख रहा था. But what is the difference? Each successive contraction starts before the previous relaxation is complete. That is, in trepe we can see incomplete relaxation. पूरी तरह से मसल रिलैक्स नहीं हो पा रही है. इसमें क्या हो रहा था, पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पूरी तरह रिलैक्स करो, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है. बट इन ट्रेपे only relaxation is beginning and it is not completing or not reaching the baseline enough, and immediately after that the stimulation is coming. Because why? The number of stimulations are increased. यहाँ पे बस 5 या 10 पर सेकेंड आ रहे थे, यहाँ पे उससे ज़्यादा है, 15 से 20 आप समझ लीजिए, उतना ज़्यादा आ रहा है. इसके वजह से जैसे ही ये रिलैक्स करने आ रहा है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, और इस पे साथ रिफ्रैक्टरी पीरियड तो है नहीं कि वो रेजिस्ट करेगा. जितनी बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उसको करना ही पड़ेगा. Therefore the contraction is coming, relaxation is started to begin. लेकिन
इमिडिएटली आफ्टर दैट इट हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट. देयरफॉर यहाँ पे भी आपको थोड़े थोड़े स्टेज जैसे दिखेंगे. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है फोर्स, लेकिन द रिलैक्सेशन इज नॉट कंप्लीट. देयरफॉर इट इज नोन एज ट्रेपे. द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू सी इज क्लोनस. अभी क्लोनस में आप चीज़ नोटिस करोगे कि स्टार्टिंग के कुछ ट्रेपे की जैसे बस थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन आधा आधा रह रहा है और एक दो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो आप देखेंगे उसमें बस छोटे 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 स्पाइक्स है. देर इज नो कॉन्ट्रैक्शन एज वेल. मतलब जो रिलैक्स मसल थोड़ी बहुत कर रही थी ट्रेपे में, वो क्लोनस में उतनी भी नहीं कर रही है. देयरफॉर इन क्लोनस देयर इज इनकम्प्लीट टिटानस. पूरी फ्लैट लाइन ऑब्टेन नहीं हुए, थोड़े थोड़े स्पाइक्स दिख रहे हैं हम लोगों को, लेकिन पूरी तरह से मसल ना कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही ना रिलैक्स कर पा रही है. विथ फर्दर इंक्रीज इन द स्टिमुलेशन द मसल कैन नॉट रिलैक्स एट ऑल एंड ओनली फ्यू स्पाइक्स आर सीन इन द ग्राफ. दैट is known as clonus. Then comes the final titanus. Titanus is sustained state of contraction, no relaxation, no spikes is seen at all. Therefore this is the titanus वाला graph, एक complete flat line, कुछ भी नहीं हो. Now there can also be an extra question as that is what is physiological tetanus. Physiologically body में कब tetanus हो रहा है. tetanus यानी simple meaning क्या है, successive stimulation की वजह से contraction में रहना, contracted state में रहना. Physiologically this happens during posture maintenance. For in postural muscles, because they continuously have to be in contracted states to maintain the posture. यानी जब हम खड़े रहते हैं continuously, the muscles need to be contracted. The back muscles, the core muscles has to act continuously so that we stand in an erect posture. अगर ये muscles, anti-gravity muscles और postural muscles काम नहीं करेंगे, the body is not going to stay erect and fall वगैरह हो सकता है. Therefore, it can be referred to as physiological tetanus. The next thing that we have to study is phenomenon of fatigue. Next graph is phenomenon of fatigue. Now for that, what is fatigue first? Fatigue is the temporary phenomenon, that is where it is defined as reduced performance resulting from prolonged and continuous activity. यानी हम जैसे बोलते हैं that I'm fatigued, I'm drained, मैं थक चुका हूँ. मसल का थकना is referred to as fatigue. Causes of fatigue कि अभी हम लोग बोल रहे हैं कि एसिटाइलकोलिन खत्म हो रहा है at the neuromuscular junction. So see, this is the nerve का terminal and the muscle का end. Synaptic cleft है. Synaptic cleft में क्या होगा, सारा खेल होगा, सारा जो impulse happens is the acetylcholine जो है वो इसमें ख़त्म हो जाता है. Synaptic cleft में acetylcholine ही ख़त्म हो जाता है कि हम कितनी देर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. The neurotransmitter that is required, that is only getting exhausted. That is why the impulse is not being able to transmit and the muscle is not being able to contract finally. Okay. Now here what we can see is the final graph that we are going to see for the exam. यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, एक सिंपल मसल कर्व जैसा ही कुछ डायग्राम है, बस इसको बहुत ज़्यादा बार एक ही बार बनाया जा रहा है. अब क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ मूविंग ड्रम, बार बार एक ड्रम मूव कर रहा है, हम लोगों ने टैप की से स्टिमुलस देना है, एक ही पॉइंट पे हम लोग बार बार स्टिमुलस दे रहे हैं और हर बार ग्राफ बना रहे हैं. तो अभी जैसे ही हमने फर्स्ट स्टिमुलस दिया एक ग्राफ बना, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टिमुलस वाला ग्राफ. उसके बाद जैसे ही हमने दूसरी बार वापस एक बार आया, वापस स्टिमुलस दिया, तो हमने क्या देखा कि द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज इंक्रीज. फर्स्ट वाले में कम था लेकिन सेकंड वाले में बढ़ गया. दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बेनिफिशियल इफेक्ट, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होता है. बेनिफिशियल इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्शन, द सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन को मदद मिलना, दैट इज बेनिफिशियल इफेक्ट. देयरफॉर आफ्टर द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, द सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन और थर्ड कॉन्ट्रैक्शन में जो है हम लोगों को फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज मिल रहा है. ऑल्सो वी कैन, इफ यू कैन नोटिस, इतने छोटे छोटे लाइन्स में द लेटेंट पीरियड इज ऑल्सो डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस बेनिफिशियल इफेक्ट. लेकिन ये क्या आता है, ये सिर्फ कुछ कॉन्ट्रैक्शंस तक लिमिटेड है. हम लोगों ने पहले ही देखा है, बस थोड़े टाइम तक के लिए होता है, उसके बाद सब नॉर्मल होने लगता है. इसके लिए हम लोगों ने पहले 3 तो हम लोगों ने देख लिया, फिर चौथा पांचवा हर बार मसल को बार बार स्टिमुलेट करते गए. लेकिन हम लोगों ने डिफरेंस क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने जो नंबर देखे 10, 20, व्हाट इज इट, दिस आर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस. 10 कॉन्ट्रैक्शंस एक बार हम लोगों ने मसल को
ड्रम को घूमने दिया, सेम पॉइंट ऑफ स्टिमुलस पे कॉन्ट्रैक्ट करवाया, 10 बार जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया फिर 10वें कॉन्ट्रैक्शन को हमने नोट किया, वापस 10 बार स्टिमुलस दिया, फिर जो 20th कॉन्ट्रैक्शन था हमने उसको नोट किया, वापस 10 बार स्टिमुलस किया, फिर 30th कॉन्ट्रैक्शन था हमने उसको नोट किया. दैट इज वाई दी नंबरिंग. पहले 3 कॉन्ट्रैक्शन में हमने नोटिस कर लिया था कि द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीज इवेंचुअली, फर्स्ट से ज़्यादा है सेकंड का, सेकंड से ज़्यादा है थर्ड का, लेकिन ये बस कुछ टाइम तक रहता है. उसके बाद इट इवेंचुअली नॉर्मल्स एंड उसको कम कम होना पड़ता है क्योंकि मसल थकने लगता है, एसिटाइलकोलिन खत्म होने लगता है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. अभी बट लेटर फॉर इंक्रीज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीज. नाउ व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडेड? एज यू कैन सी यहाँ पे इस ग्राफ में क्लियरली मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडर. कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडर इज व्हाट? इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन. अगर आप नोटिस करें ये 30, 50, 60 ये वाले जो ग्राफ्स है इनका जो है रिलैक्सेशन पीरियड बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड है. रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है जल्दी, इधर मतलब पीक तक पहुंच गया, तो वैसे ही उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी कम है, लेकिन उसके बाद जब ये रिलैक्स होने जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा खिंच रहा है, जल्दी जल्दी रिलैक्स नहीं हो रहा है, उसको बहुत टाइम लग रहा है. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडर. कॉन्ट्रैक्शन का रिमाइंडर यानी कॉन्ट्रैक्शन का बच जाना, रिलैक्सेशन का प्रोलॉन्ग होना इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडर. मसल नॉट एबल टू रिलैक्स कंप्लीटली एंड द बेसलाइन शिफ्ट अपवर्ड्स. द बेसलाइन जो हम लोगों की नॉर्मल बेसलाइन जो बन रही थी, नॉर्मल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो अपना क्या था, ये सीधा सीधा आ रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, दिस वॉज द नॉर्मल बेसलाइन. बट क्योंकि 30 और 40 इसके बाद वो इतना थक चुका है, मसल की कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है और रिलैक्स जल्दी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 40 यानी का रिलैक्स नहीं हो रही, मसल बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है. दैट इज the phenomenon of contraction. So now let us begin with the next graph, that is the effect of temperature on skeletal muscle twitch. हम लोगों ने पहले भी देखा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कार्डियक मसल में कैसे कर रहे थे हम लोग, वार्म रिंगर सोल्यूशन, कोल्ड रिंगर सोल्यूशन. ड्रॉपर की मदद से रिंगर सोल्यूशन हम लोग मसल पे डालेंगे और फिर देखेंगे कि वो क्या इफेक्ट करती है, कितना ज़्यादा उसको उसकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, उसकी एफिशिएंसी कम करती है. तो अभी सिंपल मसल ट्विच हम लोग ने रिकॉर्ड किया है 26 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है. एंड द वार्म रिंगर सोल्यूशन इज दैट 38 डिग्री सेल्सियस और कोल्ड रिंगर क्लियरली इज दैट 16 डिग्री सेल्सियस. अभी इसमें सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात क्या है कि हम लोगों ने जैसे ही वार्म रिंगर सोल्यूशन डाला तो जो LW इंडिकेट्स व्हाट, लेटेंट पीरियड ऑफ वार्म रिंगर सोल्यूशन. जैसे वार्म रिंगर सोल्यूशन डालने के बाद वाला लेटेंट पीरियड दैट इज लेस, ठीक है, दिस इज द LW. और फिर अगर हम LN देखें यानी नॉर्मल लेटेंट पीरियड जो मसल का है एट नॉर्मल टेम्परेचर विच इज दिस, एंड LC इज द लेटेंट पीरियड आफ्टर द कोल्ड रिंगर सोल्यूशन. इसका मतलब हम लोगों ने पहले एक चीज़ सबसे बड़ी क्या नोटिस की, द वार्म रिंगर सोल्यूशन डालने के बाद लेटेंट पीरियड हैज़ डिक्रीज एंड कोल्ड रिंगर सोल्यूशन डालने के बाद लेटेंट पीरियड हैज़ increased. So now first look at this. The force of contraction of warm ringer after warm ringer solution का addition, force of contraction is increased, force of contraction is decreased. ये हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि force of contraction at the 38 degree Celsius is more than the 26. Let us consider 26 क्योंकि वो normal है, at normal temperature है. Let us consider 26 as the standard कि बस इतना होना चाहिए normally, लेकिन क्योंकि after adding the warm ringer solution it is more, therefore the force of contraction after adding the foam ringer solution is more at 38 degree Celsius and it is less 26 से कम है यानी it is less at the 16 degree Celsius, or by addition of cold ringer solution the force of contraction eventually decreases. Now what is the next important thing to be noticed, अगर आप 26 डिग्री सेल्सियस यानी जो नॉर्मल वाला ग्राफ है उसको नोटिस करें, दिस इज माई पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट 26 डिग्री सेल्सियस. इसलिए अगर हम लोग ये देखें तो एट दिस पीक दिस इज माई कॉन्ट्रैक्शन पीरियड, दिस इज माई रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है. अभी हम लोगों ने इधर तक देखा है, ठीक है, दिस इज द रिलैक्सेशन एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड. ये नॉर्मल हम लोगों ने नोट कर लिया. लेकिन अगर आप 38 डिग्री सेल्सियस यानी वार्म रिंगर सोल्यूशन को डालने के बाद अगर हम नोटिस करें, एक तो उसका लेटेंट पीरियड पहले ही कम हो गया है, इसकी वजह से वो स्टार्ट जल्दी कर रहा है, अभी इधर तक आ गया है, यानी ये जो मैंने अभी बनाया दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड फॉर वार्म रिंगर सोल्यूशन एंड
then this is the relaxation period. इधर तक this is the relaxation period for the warm ringer solution. Therefore what we can notice is with warm ringer solution जो normal इतना ज़्यादा बड़ा वाला था contraction relaxation period वो कम हो गया है with addition of the warm ringer solution. And उसकी contrast में अगर cold ringer solution वाला देखें, this is the peak, so and this is the beginning of contraction, the peak of contraction, therefore this is my contraction period, this is my relaxation period. The relaxation and contraction period after adding the cold ringer solution has increased. यानी जो ग्राफ बन भी रहा है, अगर आप सिर्फ ग्राफ भी देखें तो ग्राफ कोल्ड वाले का ऐसे स्ट्रेच्ड आउट ग्राफ है, ऐसे खिंचा हुआ ग्राफ है, यानी उसका कॉन्ट्रैक्शन पीरियड भी ज़्यादा देर तक लीनियरली चल रहा है, रिलैक्सेशन पीरियड भी ज़्यादा देर लीनियरली चल रहा है. लेकिन अगर मैं वार्म का देखूँ तो वो ऐसे दबा हुआ ग्राफ है, यानी कॉन्ट्रैक्शन पीरियड भी जल्दी खत्म हो रहा है, रिलैक्सेशन पीरियड भी जल्दी खत्म हो रहा है. अब इसका रीजंस क्या है? रीज़न हम लोग अगर देखें, as we can see, as the solution is added, the temperature of the muscle increases naturally because it is the warm ringer solution, which leads to decreasing it in its inertia. Inertia जो होता है मसल का कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने से बचेगी. that inertia is also reduced and therefore the synaptic delay is minimized. synaptic delay यानी क्या? latent period, यानी जो synapse जो नर्व और मसल में होने वाला था कि नर्व आएगा, नर्व से इम्पल्स आएगा, फिर मसल उसको इम्पल्स लेगा और फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दैट वाज द साइनेप्टिक डिले. ट्रांसमिशन में जो डिले हो रहा था वो मिनिमाइज हो गया क्योंकि उसका इनर्शिया कम हो गया. देयरफॉर द लेटेंट पीरियड इज डिक्रीज. अब लेटेंट पीरियड डिक्रीज हो गया, सॉरी द लेटेंट पीरियड डिक्रीज हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड और रिलैक्सेशन पीरियड भी क्या हो गया? वो भी डिक्रीज हो गया क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा है, फिर सब कुछ घाई हमको बहुत. हम कोल्ड वाले में देखें, after adding the cold ringer solution the temperature of the muscle decreases. There is increase in the viscosity of the muscle. जनरली क्योंकि हम लोगों ने देखा ठंडा डालेंगे, चॉकलेट वाला एग्जांपल अगर आपको पहले वीडियो से याद है कि अगर चॉकलेट को हम लोगों को कड़क करना है, उसको हार्डन करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे तो इट विल गेट हार्डन. दैट इज द विस्कोसिटी इंक्रीजेस. देयरफॉर द डिक्रीज इन द टेम्परेचर विल इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड इट विल डिक्रीज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑल्सो. क्योंकि नेचुरली वार्म में द एंजाइम्स थ्राइव, द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस विथ वार्म, बट जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम करेंगे उतनी ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी, उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज होगा. फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज डिक्रीज, द डिपोलराइजेशन ऑफ द मसल दैट हैज़ टू बी अकर्ड फॉर द मसल टू गेट कॉन्ट्रैक्टेड, दैट इज ऑल्सो स्लो एंड देयरफॉर द velocity of response is also decreased with cold ringer solution. Now let us see what are the precautions that are to be taken for the warm and cold ringer solution. The temperature of warm ringer solution should be less than 42 degrees Celsius. Now why is that so? कि 42 डिग्री सेल्सियस से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है वार्म रिंगर सोल्यूशन का टेम्परेचर, क्योंकि there is the phenomenon of heat trigger. What is heat trigger? If more than 42 degree Celsius or 45 degree Celsius के beyond का temperature is introduced to the muscle के अंदर के जो protein है that starts to get denatured and the denaturation of protein can lead to permanent muscle damage. उसके अंदर के protein जो मसल में मेनली क्या है? एक्टिन, मायोसिन, दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर प्रोटीन्स. अगर यही डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी? तो मसल में परमानेंट डैमेज हो सकता है जिसके वजह से इट विल लीड टू हीट ट्राइगर. देयरफॉर द टेम्परेचर less than 42 degree is always advisable to be used for this experiment. The next precaution is temperature of cold should not be less than 4 degree Celsius. क्योंकि क्या होता है अभी हीट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो कोल्ड की वजह से भी तो प्रॉब्लम होगी, तो मसल कोल्ड हो सकता है. मसल कोल्ड इज व्हाट? विथ डिक्रीज और विथ लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेम्परेचर मसल प्रोटीन बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्टेड, जमना शुरू हो जाता है. अगर इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर है, इंसान जम जाता है, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी जमना शुरू हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड एंड उसका भी डैमेज हो जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से मसल पूरी तरह से कोल्ड और श्रंकन हो जाती है. देन द नेक्स्ट प्रिकॉशन इज वार्म शुड बी रिकॉर्डेड प्रायर टू द कोल्ड सोल्यूशन. एज वी कैन सी इन द ग्राफ एज वेल, पहले हम लोगों ने वार्म वाला ग्राफ
निकाला हुआ है, यानी 38 डिग्री सेल्सियस का ग्राफ सबसे पहले है, उसके बाद हम लोगों ने मसल को ठंडा होने दिया है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दिया, उसके बाद कोल्ड वाला रिंगर सोल्यूशन डाला है और फिर कोल्ड वाला रिकॉर्ड किया है। उसी सीक्वेंस में हमको ग्राफ रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि द कोल्ड इनएक्टिवेट्स द मसल एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू रिवाइव इट। अभी हम लोगों ने पढ़ा मसल कोल्ड, यानी अगर ठंडा कर देंगे पूरा मसल को तो वो थोड़ी टाइम के लिए इनएक्टिवेट जैसे हो जाती है, और उस इनएक्टिवेशन स्टेट से उसको बाहर लाने के लिए इट टेक्स टाइम एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द मसल टू reactivate itself and then produce a nice contraction। तो इसीलिए हम लोग सीक्वेंस में जाते हैं, पहले वार्म, फिर उसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे एक कॉन्ट्रैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक और सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, here we are finished with the fifth graph. The last graph that is to be seen today is the conduction velocity of the nerve. If you know in general terms what is velocity, velocity is distance upon time, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम लोगों ने जितने कम टाइम ट्रैवल किया, it becomes the velocity. So in the case of nerve and muscle preparation, it determines the distance traveled by the stimulus. अगर हम लोगों ने नर्व को स्टिमुलेट किया है तो नर्व का पूरा डिस्टेंस उसको ट्रैवल करके आना पड़ेगा, फिर वो मसल तक जाएगा, फिर मसल में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वगैरह से वो साइनैप्स करेगा, ट्रांसमिशन होगा और फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दैट इज द होल कंडक्शन प्रोसेस which a stimulus has to follow for producing or eliciting a muscle response. So for this experiment, how is the nerve and muscle prepared? While dissecting, the gastrocnemius muscle is removed along with the sciatic nerve, but what this time the sciatic nerve is kept connected with the vertebral end. ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम जो है जहाँ से सेक्रल प्लेक्सिस से जो साइटिक नर्व निकल रही है उसको भी हम इंटैक्ट रखते हैं। एंड देन 2 points or 2 graphs are made. First, when the muscle is stimulated at the muscle end and when the nerve is stimulated at the vertebral end. यानी हम लोगों को इवेंचुअली क्या चेक करना है कि कंडक्शन कितना है, तो हम लोग क्या देखेंगे, एक बार मसल को दूर से स्टिमुलेट करेंगे, एक बार मसल को पास से स्टिमुलेट करेंगे, ये देखने के लिए कि कंडक्शन कितना ज़्यादा फास्ट हो रहा है या कितना फ़र्क पड़ रहा है कंडक्शन में। दूर से स्टिमुलेट करेंगे तो पता चलेगा हमको कि कंडक्शन होने में कितना टाइम लग रहा है, और पास से स्टिमुलेट करेंगे तो ये पता चलेगा कि अगर मैंने पास से किया तो कितना जल्दी हो रहा है। द डिफरेंस दैट वी हैव टू कैलकुलेट। देयरफॉर when the muscle is stimulated at the muscle end it forms the M curve, and when it is stimulated at the vertebral end it forms the V curve. Now this is the graph that we are going to see in exams. So the M curve, if we notice it, the latent period of M curve is less. Now naturally if you apply some logic, why is that so? क्योंकि मसल को हम लोगों ने किधर स्टिमुलेट किया, इधर मसल के एंड पे, यानी एकदम मसल के कॉर्नर पे हम लोगों ने उसको स्टिमुलेट किया इलेक्ट्रोड से, ताकि जैसे ही स्टिमुलस आए उसको बस क्या करना है, अभी मसल में तो ऑलरेडी वो पहुंच चुका है, मसल को बस एक्साइट करवाना है, मसल का एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होगा और मसल विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। उसको बस 2 स्टेप करने हैं अभी। लेकिन अगर मैंने उधर ही उसको वर्टिब्रल एंड पे किया तो उसको 5 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करना है। वर्टिब्रल एंड पे करने के बाद एक तो वो पहले वो इम्पल्स आएगा नर्व में, अब वो नर्व को पूरा डिस्टेंस कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कैसे, अगर समझो माइलिनेटेड है तो सॉल्टेटरी कंडक्शन होगा, ऐसे ऐसे जंप कर करके इम्पल्स आएगा, पूरा नर्व के डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। उसके बाद ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना, इसके ऊपर एक साइनैप्टिक क्लेफ्ट बनेगा, फिर साइनैप्स बनेगा, एक नर्व टर्मिनल, मसल टर्मिनल, साइनैप्स होगा, उधर से सारे इम्पल्सेस आएगा, इधर से वो रिसीव करेगा रिसेप्टर, फिर वो जाके एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग और फाइनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी वर्टिब्रल एंड पे स्टिमुलेट करेंगे तो 5 स्टेप का प्रोसेस है, लेकिन मसल एंड पे स्टिमुलेट करेंगे तो बस 2 स्टेप का प्रोसेस है। तो जल्दी कौन सा होगा, मसल वाला। टाइम किसको लगेगा, वर्टिब्रल वाले को। बस यही चीज़ हम लोगों को इधर देखनी है कि लेटेंट पीरियड ऑफ मसल कर्व इज लेस बट द लेटेंट पीरियड ऑफ वर्टिब्रल कर्व या वी कर्व इज मोर। सीन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अभी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एम कर्व का ज़्यादा है और वी where the factors affecting the abhi kaun se factors hai that will affect the velocity of the conduction in nerve. There are 2 major factors and several other. The 2 major that we have to remember is the diameter of nerve fiber and myelinated or myelination of nerve fibers.
अगर मेरे नर्व फाइबर का डायमीटर ज़्यादा है, यानी अगर वो मोटा है, तो उसका जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा in comparison to the पतला वाला. Therefore, if my diameter is more, my velocity is also more. इसका वेलोसिटी कम है. इसका एग्जाम्पल सीधा साधा है. स्मॉल डायमीटर ए डेल्टा फाइबर कैरी डल पेन एंड लार्ज डायमीटर सी फाइबर्स दे कैरी फास्ट पेन. ये दोनों ही फाइबर्स जो है नर्व फाइबर्स, दीज आर मेंट टू बी कैरिंग पेन. दोनों पेन का ही सेंसेशन कैरी कर रहे हैं, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, देर इज लार्ज डायमीटर सी फाइबर जो है वो लार्ज डायमीटर के, जिसकी वजह से वो फास्ट पेन यानी जो जल्दी से कंडक्ट करना है, जिसकी कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा ही होनी चाहिए, वो कैरी कर रहा है सी फाइबर्स. लेकिन स्मॉल डायमीटर क्योंकि ए डेल्टा फाइबर का है, देयरफॉर इट इज़ कैरिंग डल पेन और एकिंग पेन, जो हम लोगों को धीरे धीरे, जिसका हम लोगों को एहसास होता है. That is the diameter of nerve fiber. Therefore, it is also एक एग्जाम्पल इसका ये भी हो सकता है कि नर्व पेन गेट थ्योरी. इफ यू आर स्टडिंग द इलेक्ट्रोथेरेपी, वहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि पेन गेट मैकेनिज्म काम कर रहा है, यानी बिकॉज वी आर स्टिमुलेटिंग द लार्ज डायमीटर मैकेनोरिसेप्टर्स. जब हम लोग हॉट पैक वगैरह अप्लाई करते हैं या SWD अप्लाई करते हैं, टेंस अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, द मैकेनोरिसेप्टर्स आर गेटिंग स्टिमुलेटेड एंड they are large diameter fibers. Therefore what they will do, they will conduct the impulse ज़्यादा जल्दी into the spinal cord and they will block the perception of pain. Pain is carried by what, अभी हम लोगों ने देखा, it is carried by small diameter fibers A डेल्टा और C. अभी C fibers से भी ज़्यादा मोटे जो है ये मैकेनोरिसेप्टर वाले fibers है, जिसकी वजह से they will carry the impulses faster to the spinal cord and block the perception of pain. Then myelinated or non-myelinated fibers. If you know, myelination means what? Myelin is the protective covering or sheath that is present around the nerve terminal or nerve axons. Myelinated होगी nerve, तो उसका जो impulse transmission है, that is different from the non-myelinated. Non-myelinated में क्या है कि अगर मेरे पास माइलिन शीट ही नहीं है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचेगा, मेरे को बस ऐसे ऐसे धीरे धीरे इम्पल्स कैरी करना पड़ेगा, एक 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 होगा, इधर से इधर, इधर से इधर. डिपोलराइजेशन जो होगा वो मेरे को एक 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 कैरी करना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे, फिर छोटे 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 इससे इम्पल्स कैरी होगा. बट इफ़ माई नर्व इज माइलिनेटेड, व्हाट इज द डिफरेंस? इफ माई नर्व इज माइलिनेटेड, दिस इज द माइलिन शीथ, I have presence of nodes of Ranvier in between. These nodes of Ranvier acts as junction or acts as carrier. Therefore the nerve impulse क्या होता है, वो जल्दी जल्दी जंप करने लगती है. ठीक है, फिर उसको पूरा नीचे से धीरे धीरे छोटे छोटे ट्रैवल नहीं करना पड़ता. इट कैन जंप directly from one node of Ranvier to another, from another to another. Therefore the saltatory conduction is happening, and the conduction velocity or the transmission of impulse is very fast if the nerves are myelinated. Therefore this is also a factor that affects the velocity of conduction. The next and other factors are surrounding temperature. Within limits, the higher the temperature, the velocity is going to increase. क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उसका विस्कोसिटी कम होगा, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो जनरली सारे प्रोसेसेस जल्दी जल्दी होगी, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी जो है इम्पल्स ट्रांसमिशन की वो बढ़ेगी. दिस इज सिंपल एज दैट. सराउंडिंग टेम्परेचर. फिर मैकेनिकल प्रेशर रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसमिशन. अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रही हूँ, मैकेनिकली अगर मैं प्रेशर लगा रही हूँ एक नर्व पे या एक ट्रांसमिशन चैनल पे, तो उसका जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है वो कम हो जाएगा. फिर द ब्लड सप्लाई. लैक ऑफ ब्लड सप्लाई और एनर्जी रिड्यूसेस द वेलोसिटी नेचुरली, बिकॉज फॉर एवरीथिंग वी नीड ब्लड. ब्लड तो हर किसी चीज़ के लिए चाहिए. अगर कुछ भी करना है, हम लोगों को अगर प्रोटेक्शन करवाना है, रिलैक्सेशन करवाना है, इम्पल्स कंडक्ट करवाना है, हीलिंग करना है, कुछ भी करना है, सबके लिए ब्लड ज़रूरी है. अगर ब्लड कम है तो सारे प्रोसेसेस कम ही होंगे. इसलिए it reduces the velocity. Drugs like alcohol reduces the velocity. Alcohol is what? It is an irritant drug. Therefore even that reduces the velocity of conduction or transmission of impulse. फिर pH level and ions. Acidity decreases the velocity. अगर अभी हम लोगों ने क्या देखा था, फटीग का फिनोमेना. फटीग में क्या हो रहा था, एसिटाइलकोलिन खत्म हो रहा था, और उसके साथ हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया, विच वॉज इन फटीग व्हाट हैपन्स, because of the continuous contraction and relaxation occurring from prolonged time at the muscle, there is accumulation of lactic acid.
there is accumulation of lactic acid in the muscle, which leads to increase in the pH and which also contributes to the phenomenon of fatigue. Along with exhaustion of acetylcholine, another important thing that is causing the phenomenon of fatigue is accumulation of lactic acid. pH level and ions acidity decreases the velocity of conduction. Then there is nutrition of nerve. Velocity is greater in well nourished muscle. जनरली लाइक अगर मैं वेल नरिश्ड हूँ तो मेरा जो सारा काम है करने वाला वो अच्छे से ही होगा. अगर मेरी नरिशमेंट खराब है तो अच्छे से नहीं होगा. सिंपल. फिर the next important thing is the decrease in the velocity of conduction indicates injury to the nerve और सम डिफेक्ट इन द नर्व. क्योंकि अगर हम लोग ये नर्व कंडक्शन बना रहे हैं, सारे ग्राफ निकाल रहे हैं, तो हम इससे क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि अगर मेरा कंडक्शन खराब है तो इट विल इंडिकेट कि मेरी नर्व में कुछ तो प्रॉब्लम है. माई नर्व इज नॉट इंटैक्ट एंड इट हैज़ सम फॉल्ट that is indicated by this graph of conduction velocity. Normal conduction velocity for the frog is 25-30 meter per second. For human it is way more. For humans the conduction velocity is 80 to 120 meters per second. So now here we conclude all the muscle graphs that we had to see for skeletal muscle. I hope you all have understood all the graphs well. If you have any doubts, feel free to comment in the comment section. The most important thing that you have to do in this is identification, because every graph that is being asked, the one major thing is identify the graph. This is the fixed question that is being asked, and if you are able to identify the graph, half of the thing is solved there. And I think I've made it very specific and clear how to identify these graphs. स्टिमुलेशन अगर है तो आपको 2 लाइंस तो मिनिमम दिखेंगे, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम मल्टीपल स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम दो लाइन मेक शॉक ब्रेक शॉक के आपको दिखने ही वाले हैं. अगर फटीग की बात कर रहे हैं, फटीग यानी क्या है, फटीग का फिनोमिनन ही क्या है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए जिसकी वजह से मसल थक रही है. तो इसके लिए हमको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस दिखने पड़ेंगे. जब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस दिखेंगे तभी आप बोल सकते हो कि ये फटीग का ग्राफ है. फिर फ्री लोड और आफ्टर लोड, इसका भी मैंने बहुत ईजी बताया है. फ्री लोड ये याद रखो कि पहले से लोड आ रहा है. अगर पहले से लोड आ रहा है तो लोड पहले से एक्ट कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा लिवर है वो भी नीचे जा रहा है. तो जितना ज़्यादा लोड एक्ट करेगा लीवर उतना ज़्यादा नीचे शिफ्ट होता जाएगा. बेसलाइन शिफ्टेड दिखेगी. बेसलाइन शिफ्टेड है यानी इट इज़ द ग्राफ फॉर फ्री लोड. अगर बेसलाइन कांस्टेंट है इट इज़ द ग्राफ फॉर आफ्टर लोड. Then comes the questions. I have also covered all the questions that I think are important and that I think can be asked. इससे ज़्यादा इससे बाहर का I don't think कुछ भी आएगा. This I think I have covered everything. जो points है अगर ग्राफ के ऊपर बने हुए हैं A, B, C, whatever the numbers, whatever is around and inside the graph, वो तो नॉन नेगोशिएबल करना ही है, वो करके ही जाना है, उसमें से ही कुछ आएगा. उसके बाहर का अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आई ट्राई टू कवर, लाइक द हीट ट्राइगर, क्या है कॉजेस, क्या है उसके रीजंस, एवरीथिंग. सो डू फॉलो फॉर मोर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.